So students, 46 gram of ethanol is mixed with 36 gram water. Calculate mole fraction of solute. Yes. Okay. So calculate the mole fraction of solute, students. So ethanol, let it be A, water, let it be B. So what is solute here? Ethanol. Ethanol is your solute, water is your solvent, right? So you have to find the mole fraction of solute. So what will be the formula? Solute of means number of moles of A solute divided by number of moles of A plus number of moles of B. So this is, so what is mole fraction? So mole fraction is number of solute of, means number of moles of A divided by number of moles of solution. Okay. So always understand it in these terms. Okay, now what is the number of moles of ethanol? That is your A, yes. Mass of ethanol, given mass upon molar mass. What is molar mass of ethanol? C2H5OH. Carbon 12 into 2, 24 plus 5 plus, yes, Yashasvi? 46. 46, good बेटा, good. 46 ग्राम्स पर मोल ऐसे लिखना आपको, ओके? तो 46 ग्राम्स पर मोल पूरा लिखेंगे इसको. तो नाउ 46 ग्राम्स से 46 ग्राम कैंसिल, सो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 46 से 46, so that's 1 mole. Okay, good. Now what are the moles of the solutions? For that you need to find the moles of water also. Yes, sir. So 36 upon what is the molar mass of water? 18. So write it 18 ग्राम पर मोल. स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन मैथ्स फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. यूनिट्स कैंसिल होंगी, इससे आपके फार्मूले गलत नहीं होंगे. सो 18 टू द 36, सो हियर इट इज, मोल ऊपर चला जाएगा तो 2 मोल. ओके. Yes, sir. हाँ, नाउ योर मोल फ्रैक्शन ऑफ A, so that is equals to 1 upon 1 plus 2. So that's 1 upon 3. Always remember these are moles of A solute and these are moles of solution. Okay, these are moles of solute. So what is mole fraction? Mole fraction is, what is the definition of mole fraction? Mole fraction is number of moles of solute present in 1 mole of solution. So students, in all the concentration of solution, for all the terms related with concentration of solution, of solutions, see, you need to understand here you will always have solute and present in always have the solution. It can be mass, it can be volume, it can be anything, but here you will have solute and here you have solution, except there is one exception, and that is molality. In molality you have, okay, this is solute, fine, you have number of moles of solute, but in the bottom not present in 1 mole of solution but present in, yes, kilogram of solvent. Yes, kilogram of solvent. So molality is the only exception where you will get the solvent here, otherwise, and here, otherwise everywhere you will have the solution only. Is this clear to everyone? Okay, now let's
Let's do the next question. So next question is 0.1 mole of NaOH in 36 gram water. What is weight by weight percent? So first of all, what is weight by weight percent? I told you this is for solute and this is for always solution. Okay, just like we did it in case of moles. So it was N by N, it is W by W, and now that was in terms of fraction and it is in terms of percentage. So this is what we need to find. So what does this mean? It means mass of solute in 100 gram of solution. Okay, so whenever this thing will be there, it is 100 grams. Okay, so now you need to tell. So what's your solution? Yes. So this is only water, so you have to find the mass of solution. So here you have to find the mass of solute also. So what is mass of solute? Moles are given to you this time. Sir, 10%. Yes. Answer 10%. Yes, correct. So 0.1 moles like here also you can write that 1 mole is how. So what's the molar mass of NaOH? 40. 14? No. Nitrogen is 23, oxygen is 16. Yes, 40. Yes, 40. So this is 40 gram per mole, right? So you want here grams, right? Yes. Yes. Yes, sir. So how will you get grams? Formula की जरूरत ही नहीं है. That's what I am telling you. You want grams, so grams here. You want to remove moles, so moles in the denominator. लो. अब बताओ ग्राम और मोल्स में क्या रिलेशन है? 1 mole is equals to 40 grams. Is this clear? Yes. So means your given mass is equals to n into m. तो ये फार्मूले बना दिए, लेकिन फार्मूले बजाय आप मतलब okay, do it logically and common sense. So this much, so it means 40 grams of NaOH in 36 grams of water. So solvent in solute. आपको सोल्यूट में चाहिए या सॉल्यूशन में चाहिए? यहां क्या चाहिए आपको वर्ड? सॉल्यूशन. तो इट मींस 40 ग्राम्स ऑफ NaOH is present in 36 plus 40 grams of water is क्या आ जाएगा यहाँ पे? Solution. Is this clear, students? Yes. The mass of NaOH is 4 gram. Yes, sir. हाँ, Because sir, 0.1 mole is given. सॉरी. Yes, sir. तो यहाँ मल्टीप्लाई ठीक से नहीं किया हमने. इस बार तो बोल ले तुम सारे केमिस्ट्री में तो एक्सपर्ट Sir, हो. पूरे का आंसर 0.1 है. अरे भाई पूरे का आंसर तो 0.1 है, बिल्कुल ठीक है. तो यहाँ क्या ऐड हो जाएगा? तुम थोड़ा लॉजिक समझो बस, बाकी आंसर तो देखी जाएगी. लॉजिक समझो, काम करना ढंग क्या होना चाहिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड द वे. तो 4 ग्राम्स NaOH इन 36 ग्राम्स. तो 4 ग्राम्स NaOH हमें, मुझे तो यहाँ सोल्यूट तो चाहिए. आई वांट हियर सॉल्यूशन. तो जो सॉल्वेंट है उसके भी मास ऐड कर दूंगा तो आई विल गेट द मास ऑफ सॉल्यूशन. अब क्या बनेगा? अब 4 ग्राम से 40 ग्राम्स हो गया, लेकिन मुझे 40 ग्राम से चाहिए 100 ग्राम्स में. आई वांट इट इन 100 ग्राम्स. Yes. तो 4 ग्राम्स इन 40. अब इसका 100 कैसे बनेगा? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि मैं 100 बन जाएगा 40 को? बताओ.
किससे मल्टीप्लाई करूं इसको 100 बनाने के लिए? 4 by 40 into 100. चलो हाँ, 4 से डिवाइड कर दो 10 बन गया, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा समझ लो 10/4 से इसको क्या कर दूं मैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, इससे बहुत स्पीड से कैलकुलेशन होंगी, आप देखना फ्यूचर में। तो यूनिटरी मेथड इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। फॉर्मूले ज्यादा आपको याद करने नहीं पड़ेंगे, जब मर्जी आपसे बात पूछ लो। तो चलिए 10/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10 ग्राम्स इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सो 10 grams of NaOH present in, so that's your solute present in 100 grams of solution, और इसी को हम बोलते हैं weight by weight percentage। तो what's weight by weight percentage? 10। okay, is this clear? Yes. So you can say 10% NaOH is present in the solution। तो 10% आपका NaOH और बाकी क्या 90% वाटर, तो बन गया 100% सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? तो हम ग्राम्स की टर्म से बात करें तो 10 ग्राम्स, 90 ग्राम्स, 100 ग्राम्स, तो इसको हम लिखते हैं वेट बाय वेट परसेंट। तो कितना है, तो 10, तो 0.1 नहीं बोलेंगे हम, 10 बोलेंगे। 10% का मतलब 0.1 होता है, लेकिन हम यहां पहले ही वर्ड यूज कर चुके हैं परसेंट। तो बेटा डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। इसीलिए मैं कहता हूं वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसीलिए डेफिनेशन जरूरी है। तो कितना सोल्यूट का कितना मास है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, कितना मास है 10 ग्राम्स। इज दिस क्लियर? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपको एक कफ सिरप इज गिवन। कफ सिरप होता है ना, पीते हैं ना आप जब खांसी हो जाती है, तो उसमें जो अल्कोहल है that is 5% volume by volume, okay, it has 5% volume by volume alcohol, okay, तो वॉल्यूम ऑफ कफ सिरप is 190 ml. Find the volume of alcohol in it. बताओ। अब परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसका क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ, वही सॉल्यूट, पहले सॉल्यूट आएगा, हर बार वही बात है, सॉल्यूट, यहां क्या आएगा सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो जब भी आप परसेंट आएगा इसका मतलब ये 100 है, ये ध्यान रखो बस सॉल्यूशन। इज दिस क्लियर? और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो, तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5 ml। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V5/5? व्हाट इज दिस मीन? दिस मीन 5 ml of alcohol is present in 100 ml of क्या, कफ सिरप सॉल्यूशन, कफ सिरप। तो
कितना होगा, हमें कितना चाहिए यहाँ पे, इसको आप 200 कर दो, चलो क्वेश्चन को चेंज कर 200 ml। तो 200 ml में कितना होगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपली 2 से, बस आ गया आंसर। सो 10 ml ऑफ एल्कोहल इज प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, कफ सिरप। ओके स्टूडेंट्स, तो देखा आपने फॉर्मूलेज की जरूरत पड़ रही है आपको, और फार्मूला लिखना है तो वो भी लिख दो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। किसी का फार्मूला लिखना है वॉल्यूम V बाय V, तो इसका फार्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 100 ml। बस, तो इसको 100 ml नहीं लिखना तो इसके लिए क्या लिख देते हैं फिर, इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, लेकिन ये आपका ml में होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन। तो ये फार्मूला भी लिख सकते हो आप, ओके करके देख लो। 5 ml अपॉन 100 ml, यही है ना वॉल्यूम इन ml, 500 इंटू, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ये लिखेंगे आप, उसका किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, 100 से 100 कैंसिल, ml से ml कैंसिल, तो कितना आया, 5 आया ना। ओके, सो परसेंट बाय परसेंट इज 5। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट। Yes, sir. तो एक तरीके से आप इसका मीनिंग ये समझो, अगर आप V बाय V मीन्स का मतलब समझना चाहते हैं, या M बाय M का मतलब, या V बाय V, M बाय M मतलब W बाय W, तो इनका मतलब, या फिर आप W बाय V कर सकते हैं भाई, तीन ही तो कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, हाँ? और क्या बना सकते हैं आप, ग्राम्स पर लीटर बना सकते हैं, ओके। लेकिन इसका जो मीनिंग है वो है पार्ट पर 100। क्या है इसका मीनिंग, पार्ट पर 100। हाँ, कि इसके अगर 100 है तो इसके कितने पार्ट हैं 100 में, ये 100 है, ये 100 ग्राम कह लो, ये 100 ml कह लो, इसके भी 100 ml कह लो, तो ये है पार्ट। जैसे अब आगे आएगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, उसी तरीके से ये क्या है, पार्ट पर 100। हाँ पार्ट पर 100, ओके। तो इस 100 में इसके कितने पार्ट हैं सोल्यूट के, 5 पार्ट है 100 में। इज दिस क्लियर। यस। तो मोल फ्रैक्शन में मोल्स की बात थी, तो इसलिए वो 100 की थी, यहां हमने सबका, इनका सबका जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया 100, तो इसलिए ये सब पार्ट्स पर 100 है, ओके। चलिए डन स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अब अगर इसकी बात करें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो इसकी एक ये थोड़ा सा इससे, ये तो ठीक है आप समझ गए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स, देखो 1 सेंटीमीटर का आप क्यूब बनाना, 1 सेंटीमीटर कितना ही बनेगा ना, इसे थोड़ा छोटा बनेगा इनफैक्ट, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इसका जो वॉल्यूम है वो, आप बताओ मुझे, मिलीलीटर है, लीटर है, क्या है बताओ, या तो मिलीलीटर होगा या लीटर होगा, तो क्या बन रहा है 1 ml, ओके। अब आप 1 के बाद 10 में आ जाओ, 10 सेंटीमीटर में, किसमें, 10 सेंटीमीटर। हाँ, तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ये तो 5 ही है, 10 तो और बड़ा होगा, समझ रहे ना आप मेरी बात को। Yes, sir. तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का ये क्यूब है आपका,
10 by 10 का, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसके इक्वल होता है 1 लीटर के, 1000 ml के, क्योंकि 10 10 10 कर दिया इधर आपने, है ना, Yes, sir. इधर पावर 3 नहीं है आपकी। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना 1 लीटर। स्टूडेंट्स याद रहेगा ये। तो ऐसे ऐसे 1000 क्यूब बनेंगे इसमें से, ऐसे ऐसे 1000 क्यूब्स। और अगर आपकी साइड हो जाए मीटर, क्या हो जाए, एक और जीरो लगा दो, ठीक है। इसी को हम 1 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर को हम कहते हैं 1 डेसीमीटर। क्या कहते हैं, तो ये 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर है। तो आप 1 डेसीमीटर से याद रखो, इसको 1 सेंटीमीटर से। और स्टूडेंट्स उसके बाद आया मीटर। जो आपके घर में पानी की टंकी होती है ना 1000 लीटर की, 1000 लीटर की पानी की Yes, टंकी sir. होती है, तो आप उसको क्यूब समझो। वो उसका जो वॉल्यूम है वो 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। तो देखो बिल्कुल स्टैंडर्ड है ये था, ये समझ रहे बात आप। तो 100 सेंटीमीटर आ गया ये। तो 100 सेंटीमीटर को 3 बार करोगे तो 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब, ये 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। तो कोई बात नहीं, दोनों तरफ 10⁻3 10⁻3 मल्टीप्लाई कर दिया बस, और क्या है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर। तो स्टूडेंट दोबारा लिख देता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 लीटर, एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। इसको आप 1 डेसीमीटर क्यूब बोलो या 10⁻3 सेंटीमीटर।